Good morning, students. So, in this class, chance to learn, we will discuss about pronoun and different kinds of it. So, let's start. I hope you will enjoy my previous video also. Pronoun. What is pronoun? A word which is used in place of a noun is called pronoun. वो वाला word जो noun की जगह use होता है, जैसे I, you, they, his, her, them, we, hers, she, etc. These all are example of pronoun. Saina Nehwal is a sports person. Saina plays badminton. The racket lying on the table belongs to Saina Nehwal. आपने देखा बार बार एक ही पर्सन का नाम रिपीट हो रहा है. So Saina Nehwal is a sports person. She plays badminton. The racket lying on the table belongs to her. अब अपने with the help of pronoun we can remove easily repeating words. She and her are pronouns. यहाँ पर जो हमने she यूज़ किया है और her यूज़ किया है, these both are pronouns. So जब भी आपने प्रोनाउन यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए मेल के लिए क्या यूज़ करना है और फीमेल के लिए क्या यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स काइंड्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. Okay, first we will talk about personal pronoun. Personal pronouns are used as the subject or the object in a sentence. जो subject और object के लिए use होते हैं that all are called personal pronoun. Look at the examples. I'm doing my work. You're wasting your time. He wakes up early in the morning. They play football in the school. So examples: me, us, him, her, them. Objects. जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं वो है सब्जेक्ट की और जो सेकंड पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल. माई मदर लव्स मी अ लॉट. ओके, टीचर हैज़ मेड अस टू लर्न मैनी थिंग्स. योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आई, यू, ही, दे, दीज ऑल आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखा मी, आस, हिम, हर, देम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. सो नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज टू डिनोट पोजीशन, बिलोंगिंग और रिलेशन. जिस थिंग के साथ हमारा क्या रिलेशन है वो बताता है. दिस इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. दीज कीज आर योर्स. दिस बैग इज माइन. दिस बैग इज हर्स. तो कीज मैंने कहा ये चाबियां तुम्हारी हैं, तो यस से पता चला ना कि तुम्हारी हैं. पोजेशन दर्शा रहा है, रिलेशन बिलोंगिंग बता रहा है कि तुमसे बिलोंग करती हैं. दिस बैग इज माइन, ये बैग मेरा है. इट मीन्स पोजेस किसे कर रहा है? मुझे. दिस बैग इज हर्स, ये उसका बैग है. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Demonstrative pronouns are such words which point to specific things. Demonstrative pronouns वो होते हैं जो specific thing को क्या करते हैं? Point out करते हैं. जैसे this, these, that, these. ये क्या है? Demonstrative pronoun. This or that are used for singular thing. These and those are used for plural things. This and these are used for the things which are near to the speaker, जो आपके पास हैं. That and those are used for the things which are far away from the speaker. That और those किसके लिए यूज़ होती हैं? जो things हमसे दूर पड़ी हैं. जैसे this is an empty box, कि ये empty box है. These are rotten mangoes, जो सड़े हुए आम हैं. That is haunted house. तो ये क्या थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टू पॉइंट अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्रोनाउन. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. क्वेश्चन वर्ड्स विच आर आस्क्ड टू आस्क क्वेश्चंस कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. क्वेश्चन वर्ड्स जो हम प्रश्न पूछने के लिए यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट, who, how, why,
when, which, whose, whom, where, how many, how much. These all are examples of interrogative pronoun. What is your name? How are you? When do you celebrate your birthday? Where do you live? Who gave you this interesting book? So these all are called interrogative pronouns. Why she is running? Look at the girl in the picture. ये लड़की भाग क्यों रही है? मैंने क्वेश्चन पूछा ना. नेक्स्ट है reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used when the action is done by the subject, reflects on the subject. वो वाला काम जो सब्जेक्ट ही कर रहा है, खुद से ही कर रहा है अपने आप, that is called reflexive pronoun. जैसे itself, herself, himself, themselves, ourselves, yourself, myself. He has hurt himself while kicking to break his PC. जब वो अपने पीसी को तोड़ रही थी तो उसने अपने आप को ही हर्ट कर लिया. सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द अपकमिंग प्रेजेंटेशन. वो अपने आप को जो आने वाली प्रेजेंटेशन है उसके लिए तैयार कर रहा है. थर्ड एग्जाम्पल, शी गिफ्टेड हर सेल्फ मैनी ड्रेसेस ऑन हर बर्थडे. उसने अपने आप को, उसने बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी अपने के लिए अपने ही बर्थडे पर. तो जो चीज़ उसने खुद के लिए खरीदी. emphatic pronouns. The words which are used to refer for subject emphasize are called emphatic pronouns. Itself, herself, himself, themselves, ourselves, yourself, myself. This is very small, tiny confusing, so don't worry. After watching this video you can understand each and everything very well. They themselves have done their work. वो अपना काम खुद कर चुके हैं. themselves. She herself cooked this tasty food. Okay? उसने टेस्टी फूड खुद बनाया अपने लिए. My friend himself has discovered this thing. मेरे दोस्त ने अपने आप ही इस थिंग को डिस्कवर किया. I opened the gate myself. मैंने अपने आप गेट को खोला. अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि थोड़े कंफ्यूजिंग है. ही कट हिमसेल्फ ड्यू हिज केयरलेसनेस, कि उसने अपने आप को अपनी केयरलेस के कारण, लापरवाही के कारण कट लग गया उसे. दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक. उन्होंने अपने आप ही अपनी मिस्टेक को मान लिया. वी ब्लेम आवर सेल्फ फॉर दिस मिस्टेक. ओके, कि हम अपने आप को इस मिस्टेक के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं. ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस. उसने अपने आप ही मुझे सारा कुछ बता दिया. वी ऑफन डिसीव अवर सेल्व्स. कई बार अक्सर हम अपने आप को धोखा देते हैं. शी हर सेल्फ पेंटेड द वॉल. उसने अपने आप ही क्या किया, वॉल को पेंट किया. द टेररिस्ट शूट हिमसेल्फ. टेररिस्ट ने अपने आप को शूट किया. रोहन हिमसेल्फ वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्लान. रोहन खुद ही प्लान के बारे में अवेयर नहीं था. तो आपने देखा थोड़ा सा डिफरेंस है. you will need of practice, because practice के साथ आप इसके used to हो जाओगे. themself, himself, herself, ये क्या है, अपने आप. okay. relative pronoun are used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. relative pronoun वो होते हैं जो क्या है, clause और phrase को noun और pronoun से connect करते हैं. they play a role of joining words का काम करते हैं ये. जैसे the woman who called yesterday wants to learn English. वो वाली woman जिसने कल फ़ोन किया था वो इंग्लिश सीखना चाहती है. did you see envelope which came today? आपने उस envelope को देखा जो मैं आज लाई हूँ. today. she is the student whose father is scientist. वो स्टूडेंट है, ये वो गर्ल है जिसके पापा साइंटिस्ट हैं. डू यू लाइक द डॉग दैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. क्या तुम्हें वो वाला डॉग पसंद है जो टेबल के अंदर सो रहा है? टेबल के अंदर का मीनिंग ये नहीं कि टेबल के अंदर, नो, टेबल के नीचे, अंडर. अ प्ले ग्राउंड इज अ प्लेस वेयर वी कैन प्ले फुटबॉल. प्ले ग्राउंड एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम सब फुटबॉल खेल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स का काम करते हैं. मीन्स कि जो क्लॉज और फ्रेज है उसको ज्वाइंट करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ. जैसे हु, विच, हुज,
whom, that, when, where, why. These all are relative pronouns. While using these, you will have need of patience and carefulness. जब आप इन्हें यूज़ करोगे धीरे धीरे आप इनके यूज टू हो जाओगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर पर्सन्स और थिंग्स one at a time and always use a singular noun with singular verb. Example, each, either, neither. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो पर्सन और थिंग को एट ए टाइम हम यूज़ करते हैं. ये क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईदर ऑफ यू कैन टेक माई बुक, कि आप दोनों में से किसी ने मेरी बुक ली है. नीदर ऑफ द गर्ल्स इज टायर्ड, कोई भी गर्ल टायर्ड नहीं है. ईच ऑफ देम इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब उन सारों में से हर कोई अच्छा प्लेयर है. ओके. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं विच आर यूज टू रेफर द सेम थिंग विच इज़ डन बाय टू और मोर देन टू पीपल. उस वही सेम थिंग को बताना जो दो या दो से ज़्यादा जनों ने की हो. मैरी एंड जॉन लाइक ईच अदर, मैरी एंड जॉन एक दूसरे को पसंद करते हैं. टू बॉयज़ फॉट विद ईच अदर इन द क्लास, दो लड़के एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं. स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर इन देयर प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की मदद की प्रोजेक्ट बनाने में. इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट और पीपल whether in plural or singular form. Example, somebody, anybody, nothing, few, no one, everything, everybody, many, etc. So indefinite pronoun क्या होते हैं, वो वाले words होते हैं जो unspecified object और लोगों को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे nobody came to the auditorium, कोई भी ऑडिटोरियम में नहीं आया. All were waiting for the announcement, सभी अनाउंसमेंट की वेट कर रहे थे. Everybody, okay. So this is an advertisement, so sorry for this. Yes, continuing. Okay. Next, exercise to revise. It is a very important for recapitulation, which you learn from this video. State underline pronoun given each sentence. Okay. Thank you. Have a nice day.